Hello students, so this is your science 1 lecture and we are in our second chapter, that is periodic classification of elements. Okay, and as you all know, this chapter is all about the journey towards periodic table. Okay, this explains the journey towards the periodic table. Okay, so how is the journey? I mean, what are the different steps in that? See, suppose this is the path, then there were some scientists who gave their own periodic table, or who put forward their thoughts about the different elements and the how to make the groups and how to arrange them and all. Okay, so first was Dobereiner-Stayat. Okay, so first scientist was Dobereiner. Then Newland gave one law of octaves. Then there was Mendeleev's periodic table. So there was a scientist, Mendeleev, who gave his periodic table. And then finally we have modern periodic table. Okay, so we have done with this three scientist theory. Okay, we have done this three laws or three periodic tables. Okay, and now today we are going to see the modern periodic table. Okay, so modern periodic table is table which we are using nowadays. Okay, and which is a perfect periodic table. Okay, so why modern periodic table is different than other three? Okay, because Dobereiner and Newland they had given theory, but उनके theory में बहुत सारे drawbacks थे, limitations थी. Okay, but Mendeleev was really great scientist. उनका जो periodic table था, which it was really a step forward. Okay, but what went wrong? Why there were so many limitations in Mendeleev's periodic table? Okay, so Mendeleev's periodic table में भी बहुत limitations थे, तो क्यों ऐसा? Okay, so the reason behind this is till Mendeleev's time. Okay, Mendeleev's के time तक एटॉमिक मास का कंसेप्ट पता था, लेकिन एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट है इट वाज नॉट डिस्कवर्ड टिल मेंडलीव्स टाइम. ठीक है, मतलब क्या, आप लोगों को पता होगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज एटॉमिक मास. ओके, और एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आपने सीखा होगा 9th स्टैंडर्ड में. वापस एक बार रिवाइज करने वाले हैं हम लोग. ओके, बट देन जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है या वो जो थ्योरी है, ओके, वो मेंडलीव के टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था. सो दे ऑल वर नॉट अवेयर ऑफ एटॉमिक नंबर, सो दे यूज्ड एटॉमिक मास इन अरेंजिंग द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. ओके, एंड एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने जब अरेंज किया तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट करने के लिए, एंड द पीरियोडिक टेबल गॉट सो मेनी लिमिटेशंस एंड ऑल. ओके, सो मेंडलीव के बाद देर वॉज अ साइंटिस्ट. ओके, मेंडलीव का थियोरी कब दिया उन्होंने? इन 80s, आई थिंक 1863. ओके, एंड आफ्टर मेंडलीव देर वॉज अ साइंटिस्ट. ओके, इन आई थिंक अराउंड 19, let me check, in 90s there was one scientist called Henry Moseley. Yeah, it is 1913. Okay, 1913 there was one scientist named Henry Moseley. ओके, एक साइंटिस्ट था हेनरी मोस्ले. ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स. ओके, एंड ही चेक्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स. मतलब उन्होंने क्या किया, ही वांटेड टू सी द स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट. तो एलिमेंट कैसे दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है. तो उन्होंने क्या किया, एक्सरे यूज़ करके, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करके उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया, एंड देन ही फाउंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, एंड देन ही फाउंड आउट द कंसेप्ट ऑफ or the theory of atomic number. Okay, and he found that atomic number is the basic property of element. Okay, Henry Moseley ने क्या बोला, atomic number is the basic property of element. and Henry Moseley से पहले मेंडलीव तक क्या पता था उनको कि atomic mass is the basic property, but what Henry Moseley said, atomic number. Okay, so let us see what is the structure of atom and what is atomic number. Okay, atom मतलब क्या, atom में क्या क्या होता है. atom is the smallest particle of any element. Okay, या smallest particle of matter. Okay, so atom का structure कैसे होता है. atom में inside there is one nucleus, and around this nucleus there are some shells. Okay,
ऐसा एक क्या रहता है, शेल रहता है, या वी ऑल्सो कॉल दिस एज ऑर्बिट. ओके, ये आपको पता होगा. यू मस्ट बी नोइंग द एटॉमिक नंबर, द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड ऑल. एक बार रिवाइज करते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, कि वापस एक बार रिविजन होगा आपका. ठीक है. सो एटम में क्या होता है, एलिमेंट्स में क्या होता है, देयर इज वन न्यूक्लियस इनसाइड एंड देर आर सम शेल्स आउटसाइड. ओके, सो एक शेल भी रह सकता है, 2 शेल्स, 3 शेल्स, 4, 5, 6. ओके, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ दिस एटम. इसका जितना भी एटॉमिक नंबर होगा उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको शेल्स कितने होंगे. ठीक है. So that we will see later on. But the basic structure is the nucleus and the shells or the orbits around the nucleus. Okay. Now nucleus में क्या रहता है? Inside nucleus there are protons and neutrons. Okay. न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड ये जो शेल्स है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो शेल्स है, शेल्स में क्या होता है, इन शेल्स देर आर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड. ओके, देर आर इलेक्ट्रॉन्स which are moving around the nucleus and here in the shell or the orbit. Okay, तो ये orbit में move होते हैं electrons. Okay, and electrons are always negatively charged particle or negative they have negative charge, and protons are positive charged particles. Okay, so proton P मतलब positive ऐसे consider करो. तो proton मतलब प्रोटॉन पे क्या चार्ज रहता है, पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन एज द नेम सजेस्ट, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. ओके, न्यूट्रॉन को ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, इट इज न्यूट्रल. अंडरस्टूड. ओके, सो देर आर इलेक्ट्रॉन्स, देर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. ओके, तो कोई भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इट इज कॉल्ड एटम, एंड एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड कि ये बेसिक एटम का स्ट्रक्चर है. नाउ एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, या फिर कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो कौन डिसाइड करता है. ओके, सो द एटॉमिक नंबर इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दी एटम. ओके, उस एलिमेंट के एटम में कितना प्रोटॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, उसके ऊपर उसका एटॉमिक नंबर डिपेंड है. ठीक है. सो सपोज ये जो एलिमेंट मैंने ड्रॉ किया है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो 2 है. सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस एटम आर 2, देन इट्स एटॉमिक नंबर इज 2. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है देन एटॉमिक नंबर इज 3. सो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम और प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट. ओके, नाउ और एक कंसेप्ट क्या है, और एक चीज़ क्या है कि इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब जितने प्रोटॉन्स रहेंगे ये वाले एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. सपोज in this atom there are 2 protons, then there are 2 electrons. If 3 protons, then there are 3 electrons. So you also can say that, or you also can define the atomic number as number of electrons present in the atom. Okay, so atomic number किस पे depend है, number of protons या number of electrons, because number of protons is equals to number of electrons. Okay, so number of protons और number of electrons will decide the atomic number. ठीक है. Now हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1. इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन में देर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन. ओके, एल्यूमिनियम, इफ यू टेक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13. तेरा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है. तो 13 मतलब क्या हुआ, इसका मतलब that means aluminum is having 13 electrons or 13 protons inside its atom. Are you getting? So this is the atomic number, or this is the definition of atomic number. Okay, now ये तो हो गया atomic number and the structure of atom. Okay, now what is electronic configuration? What is electronic configuration? वो I hope you all know what is electronic configuration. फिर भी एक बार मैं आपको बताती हूँ electronic कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं शेल्स में. ओके, मतलब क्या, आई विल टेल यू. ओके,
सपोज लेट अस टेक वन एलिमेंट. सपोज मैंने लिया लिथियम. कौन सा एलिमेंट लिया? लिथियम. ठीक है. एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 2. ओके, आपको भी बाद में ना एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. वो कैसे करेंगे वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, तो वो सब हो जाएगा आपका. ठीक है. सो एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 2. सपोज मतलब या उसका एटॉमिक नंबर 2 ही है, सपोज नहीं. ठीक है. सो आई एम सो सॉरी. हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम. एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 नॉट 2. ओके, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम है. ठीक है. सो एटॉमिक नंबर है इसका 3. नो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके, तो आई विल टेल यू कैसे ड्रॉ करना है. ओके, सपोज मुझे लिथियम का एटम ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी? इनसाइड देयर इज अ न्यूक्लियस, सो दिस इज न्यूक्लियस, एंड आउटसाइड देयर आर शेल्स. ओके, आउटसाइड देयर आर शेल्स. नाउ अगेन द क्वेश्चन इज कितने शेल्स हमको ड्रॉ करने हैं, या कितने, दिस शेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, तो कितना ऑर्बिट्स ड्रॉ करना है. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन number of electrons. Okay, it depends on number of electrons. Now if the atomic number of lithium is 3, इसका मतलब लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? there are 3 electrons. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कितना है? 3 है. ओके, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 3 है. अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 3 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करेंगे? ये वाले शेल में उनको डिवाइड करेंगे. ओके, ध्यान से सुनो. सो न्यूक्लियस के बाजू में जो शेल होगा, सपोज the first shell is over here and the second shell is over here. So nucleus के बाद जो first shell है, उस first shell में there are always 2 electrons. Okay, the first shell will always have 2 electrons. Its capacity is only 2 electrons. It cannot have more than 2 electrons. मतलब आप यहाँ पे न्यूक्लियस के इमीडिएटली बाद जो शेल है, जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में आप 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज उसका कैपेसिटी है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों, कैसे, वो भी बाद में बताऊंगी मैं आपको. बाद में वो कंसेप्ट है आपको. ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लो. ओके, देन अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो एडजस्ट हो गए. ठीक है. सो अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? सेकेंड शेल में. नाउ लिथियम को देर आर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स. अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट. ओके, सो वो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बनाएंगे ये वाले शेल में, आउटर शेल में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए तो नंबर ऑफ शेल्स भी खत्म, तो इसके आगे शेल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एडजस्ट हो गए. अंडरस्टूड? दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज 2,1. कितना? 2,1. मतलब 2 electrons in first shell and 1 electron in the second shell. So this is the first shell, this is the second shell. Understood? Now let us take the example of aluminium. Aluminium में कितने I mean उसका atomic number कितना है? 13. If atomic number is 13, then how many electrons are there in the aluminium? There are total 13 electrons. बराबर, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स. सो देर आर टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स. सो उनको अभी अरेंज कैसे करना है? सो फर्स्ट मैं ड्रॉ करूँगी न्यूक्लियस. देन लेट अस ड्रॉ द फर्स्ट शेल. द फर्स्ट शेल विल ऑलवेज हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया. देन द सेकेंड शेल, the capacity of second shell is always 8 electrons. कितना? 8 इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट ऑर्बिट का या फर्स्ट शेल का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड शेल का कैपेसिटी इज 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर सकते हो? 8. ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ? लिथियम में यहाँ पे इसका सेकेंड शेल का कैपेसिटी है 8, लेकिन लिथियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है. 2 यहाँ पे एडजस्ट हो गए, 1 बचा हुआ हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया. इसका कैपेसिटी 8 है, बट we are left with only 1 electron. So 8 electrons नहीं है हमारे पास. So I will draw only 1 electron. Okay. What about aluminium? Aluminium has got total 13 electrons. 2 electrons यहाँ पे आ गए. So 13 minus 2 कितने बचे? 11. So 11 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं हमारे पास. सो क्या मैं 11 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, यहाँ पे पुट करूँगी? नहीं, because the capacity of the second shell is 8 electrons. So I will put 8 electrons over here. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
कैपेसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज ओवर। अभी वो क्या बोल रहा है, टोटल कितने हैं 13 में से 2 फर्स्ट शेल में, बचे कितना 11 में यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ, नहीं ड्रॉ कर सकती, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने के बाद ये शेल क्या बोल रहा है, माई कैपेसिटी इज ओवर, नाउ आई कैनॉट टेक मोर इलेक्ट्रॉन्स। सो कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा अभी 2 and 8, कितने 10, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा 3। ओके, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स में कहाँ ड्रॉ करूँगी, कहाँ, थर्ड शेल में। सो नाउ आई हैव टू टेक थर्ड शेल एंड इन दिस थर्ड शेल देर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ड्रॉ कर सकती क्योंकि अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एल्यूमिनियम के पास 13। अभी देखो 13 खत्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझ में आ गया। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2, 8, 3। Okay, so this is called the electronic configuration. Okay, so electronic configuration again depends on the number of electrons that element is having. Okay, and वो कैसे आपको अरेंज करना है, हमेशा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अभी यहाँ पे 13 है, नंबर 13 है, तो यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन्स बच गया। 2 and 8 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। सो जितने भी लेफ्ट है उतने हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे या यहाँ पे हम लोग उसको लिखेंगे। समझ में आ गया। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द electronic configuration. So hope you understood what is electronic configuration, right? Okay, so this is all about the concept of atom, atomic number and electronic configuration. Okay, so let us see what is the modern periodic table. So हमारा जो modern periodic table है, या जो हेनरी मोसले ने कंसेप्ट बताया एटॉमिक नंबर का, what he said that the atomic number is the basic property of element. Okay, whereas the other scientists, Mendeleev, Newland and Dobereiner, what they did, they said that atomic mass is the basic property and they arranged the element in the increasing order of their atomic masses. Okay, but after the discovery of atomic number, okay, the Henry Moseley said that atomic number is the basic property of any element, and the law of the modern periodic table states that the law of modern periodic table is ये देखो, ये है modern periodic table का law. The properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. Okay, so क्या है statement modern periodic law का, modern periodic table का law क्या है, properties of elements are periodic function of their atomic number. This is very important, atomic number. Okay, whereas दूसरे scientist ने क्या बताया था, डोबेराइनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव ने क्या बताया, properties of elements are periodic function of their atomic mass. And what is the change in modern periodic table? The atomic mass is replaced by atomic number. समझ में आ गया? Okay, so this is the big difference between the previous periodic table and the modern periodic table. So remember this. Here ये पूरा सेंटेंस ना सेम है पहले वाले के लिए भी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। सिर्फ डिफरेंस किधर है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर है फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड प्रीवियस वन में देयर इज एटॉमिक मास. ओके, नाउ लेट अस सी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो बहुत ध्यान से सुनो ये चीज़. ओके, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है. ओके, वो सब, ये सब थ्योरी पार्ट है, ये सब थ्योरी है, ये मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बाद में वो रीड करना है अच्छे से. ओके, after listening to my explanation, okay, please go through it, please read the concept of modern periodic table carefully, तो आपके दिमाग में एकदम फिट बैठेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसा है. ठीक है. ओके, so let us start with modern periodic table. This is how your modern periodic table looks like. Okay, you can see the different colors. अभी ये different colors क्यों है मैं आपको बाद में बताती हूँ. ठीक है. So now if you see the modern periodic table, there are some horizontal rows and vertical columns. Okay, ये कैसे अरेंज किया है, इसमें कुछ
हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल ऐसा, ओके, दिस यू ऑल नो दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, ओके। सो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ओके, दे आर कॉल्ड periods in the modern periodic table, okay, the horizontal rows are called periods in the modern periodic table and the vertical columns are called groups in the modern periodic table. तो vertical columns को क्या क्या बुलाएंगे हम लोग, क्या क्या बुलाते हैं उसको, they are called groups and the horizontal rows are called as periods, okay, remember this. So मैं जब भी periods बताऊंगी तब आपको पता होना चाहिए I am talking about the हॉरिजॉन्टल लाइन्स, मतलब सी फर्स्ट पीरियड कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक, हाइड्रोजन एंड हीलियम इज फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स है, दिस इज द सेकेंड पीरियड, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज द सेकेंड पीरियड। इन सेकेंड पीरियड कौन से एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ओके। देन देर इज थर्ड पीरियड, fourth period, fifth period, sixth period, seventh period. So how many total periods are there in the modern periodic table? There are total 7 periods in the modern periodic table. First, second, this is the third with sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, okay, sulfur, chlorine, argon and all, okay. Then this is the fourth one, this is fifth period, this is sixth period, this is seventh period. समझा? तो there are total 7 periods in modern periodic table. Okay, let us see groups. Okay, so the vertical columns are called as groups. So there are total 18 groups. कितने हैं total? 18 groups है. So this is the first group, okay, with hydrogen, lithium, sodium, potassium and all. ठीक है? So ये जो है हमारा ये first group है. This is second group, this is third, fourth, fifth, sixth, 7, 8 up to 18 group. So total कितने हैं? 18 group. तो देखो यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 18. Okay, so there are total 18 what groups. Okay, there are total 18 groups in the modern periodic table and total 7 periods in the मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी आप बोलोगे मैम इधर कुछ एक्स्ट्रा है, तो आई विल टेल यू ये क्या है, ये कौन सा सीरीज है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। सो ये भी देखो, ये जो पीरियड्स है ना, सॉरी ये जो एलिमेंट्स है ना, दे आर ऑल्सो देयर इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सिर्फ उसका कॉम्पैक्ट वो ऐसा क्यों किया है, सो दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा कॉम्पैक्ट रहे। अभी क्यों कैसे मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सो व्हेन यू ड्रॉ दिस groups like this and then when you draw the periods like this, okay, they form boxes, okay। मतलब जब आप groups को ऐसे vertically draw करते हो and periods को ऐसे horizontally draw करते हो, तब एक एक बॉक्स बनते हैं, ओके। यू कैन सी वन boxes over here, okay। so each box has one element। तो हर एक, कैन यू सी दिस बॉक्सेस, सो हर एक बॉक्स में एक एक एलिमेंट पुट किया हुआ है, ठीक है। जैसे न्यूलैंड ने एक बॉक्स में 2 एलिमेंट्स पुट किया था, ओके, नॉट एवरीवेयर बट इन सम बॉक्सेस ही हैड पुट 2 एलिमेंट्स टुगेदर एंड विच वाज द लिमिटेशन एंड दैट लिमिटेशन इज ओवरकम हियर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बिकॉज इफ यू सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हर एक एलिमेंट अलग अलग बॉक्स में है, ठीक है। तो ये देखो ऐसा एक बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है हर एक एलिमेंट में, ओके। फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा है दैट इज एटॉमिक नंबर। सो लेट अस सी हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन या ये फर्स्ट बॉक्स देखते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है विच इज़ 1। तो ये 1 क्या है, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज दिस H? H इज दिस सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। देन ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, मतलब इट इज़ द नेम ऑफ दिस एलिमेंट and atomic mass is written somewhere over here below the name which is 1.008, okay। so this is the atomic mass, this is the name of the element, this is the symbol of the element, this is the atomic number of the element, understood। तो ये डिस्क्रिप्शन है, तो ये हर एक बॉक्स में है। तो हर एक बॉक्स अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको मतलब हर एक का, लाइक सपोज यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19 यहाँ पे लिखा है। पोटेशियम का सिंबल है K, पोटेशियम का नेम इज पोटेशियम एंड उसका एटॉमिक मास इज ओवर हियर, ओके। तो हर एक आप अच्छे से चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा हर एक के मासेस कितने हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, वगैरह वगैरह, ओके। अगेन इफ यू सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट इज अरेंज्ड
in the increasing order of their atomic number. Okay, whereas Mendeleev, Newland, Dobereiner, what they did, they arranged the periodic table in the increasing order of their atomic masses, and because of that there were so many limitations. So modern periodic table में क्या हुआ, modern periodic table was arranged okay in the increasing number of their atomic number. मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1 तो वो फर्स्ट है. देन नेक्स्ट कौन है, हीलियम. ओके देखो कैसे अरेंज किया है, हियर देन लाइक दिस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 is here, 12 then 13 14 15 16 17 18 then 19 20 21 like this. ओके अभी आप बोलोगे यहाँ पे ऐसा क्यों स्ट्रक्चर है, एक ही अच्छे से स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, बिकॉज इट अगेन द ग्रुप्स आर अगेन डिपेंड्स ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल. ओके तो उस हिसाब से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है. तो ऐसे आप सो दैट इज़ वाई यू विल फाइंड दिस गैप ओवर हियर. ओके सो देन होप यू नो कि ये कैसे किया है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. ओके तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5 6, कार्बन 7, नाइट्रोजन एंड सो ऑन. ओके up to this element okay whose atomic number is 118, that is 118. इसका मतलब क्या है, till today we have total 118 elements discovered. okay till today कितने elements discover किए हुए हैं, 118 118. ओके सो ह्याच्या पहिले जेव्हा आपण अलग अलग सायंटिस्टचे कॉन्सेप्ट पाहिले तेव्हा किती एलिमेंट्स माहिती होते. डोबेरायनरच्या वेळेस देर वर ओनली 30 एलिमेंट्स, न्यूलैंड्स के टाइम पे 56, मेंडेलीव्स के टाइम पे 63, बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओके देर आर टोटल 118 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड प्रॉपरली. अंडरस्टूड. ओके सो टोटल कितने बॉक्सेस है, 118 मतलब 118 total elements are there in the modern periodic table. Understood? Okay so this is all about the structure of modern periodic table. okay now let us see the periods and electronic configuration. okay let us first see the periods, मतलब periods को कैसे arrange किया है वो हम लोग देखते हैं. okay अभी see first period में कौन सा एलिमेंट है, there are only 2 elements, hydrogen and helium. second period में lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. okay then third then fourth. okay now ये जो उनका पीरियोडिक नंबर है ये ऐसे ही, दिस इज नॉट अ सीरियल नंबर. ऐसे ही नहीं कि कोई भी आ गया और सीरियल नंबर दिया एंड या दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. नो इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके दिस नंबर इज इंडिकेटिंग समथिंग. ये नंबर कुछ तो भी बोल रहा है, कुछ तो भी बता रहा है. ओके यू नो वॉट, ये नंबर क्या बता रहा है पता है, दिस नंबर इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. ओके द इलेक्ट्रॉन्स ओके ये क्या बता रहा है कि कितने शेल्स होंगे, मतलब ये वाले एलिमेंट में कितने शेल्स होंगे. ओके सो इट इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ शेल्स, सॉरी नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेल्स. ओके नंबर ऑफ शेल्स मतलब ये दिस इज 1. ओके इसका मतलब हाइड्रोजन विल हैव ओनली 1 शेल, हीलियम विल हैव ओनली 1 शेल. दिस इज 2. दिस मीन्स all these elements will have 2 shells or 2 orbits in its atomic structure. कैसे? Let us see. Okay. First, let us take the example of hydrogen. Okay. So हम लोग क्या करेंगे, पहले देखते हैं किसको, हाइड्रोजन को. ये हाइड्रोजन हीलियम कहाँ पे है, फर्स्ट क्या पीरियड, बराबर ग्रुप नहीं, फर्स्ट पीरियड. सो फर्स्ट पीरियड का मतलब क्या है, लेट अस ड्रॉ दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है. सो यहाँ पे सिर्फ बनेगा 1 शेल क्योंकि देर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ओके देन इफ आई ड्रॉ इट फॉर हीलियम, एटॉमिक नंबर इज 2, दैट मीन्स देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट शेल का कैपेसिटी कितना होता है, मैंने क्या बताया, फर्स्ट शेल का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर. तो
हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन को एक शेल है, हीलियम को भी एक ही शेल है, बराबर, बिकॉज दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में एडजस्ट हो सकते हैं, तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में एडजस्ट हो गए, सो देयर इज ओनली वन शेल और वन ऑर्बिट. ओके, सो दिस गिव्स द नंबर ऑफ पीरियड, मतलब पीरियड, ये इसका पीरियड 1 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि देर आर ओनली और देर इज ओनली वन शेल इन दीज elements. Okay, let us see 2. Okay, 2 हम लोग ने 2 सेकेंड पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट कौन है, लिथियम. लिथियम के लिए हम लोग ने ड्रॉ किया है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ. बट अभी ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट दीज ऑल एलिमेंट्स इन पीरियड 2 विल हैव 2 शेल्स और 2 ऑर्बिट्स. कैसे, ये देखो, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कैन यू सी देयर आर ओनली 2 शेल्स. यस, लिथियम को कितना शेल्स है, 2 शेल्स है. ओके, अभी आप बोलोगे मैम लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कम है, इसलिए 2 शेल्स है. अभी सेम पीरियड में लेट अस ड्रॉ इट फॉर नियॉन, क्योंकि नियॉन को सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 10. इस पीरियड में सबसे बड़ा कौन है, नियॉन का नंबर है, एटॉमिक नंबर. तो लेट अस ड्रॉ इट फॉर नियॉन. ओके, सो पीरियड 2 में अगर मैं नियॉन के लिए ड्रॉ करती हूँ, उसका एटॉमिक नंबर है 10, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो फर्स्ट मैंने ड्रॉ किया फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2. कैपेसिटी खत्म, ड्रॉ सेकेंड शेल. ओके, सो पहले हम लोग ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया, अभी बचा कितना, 10 - 2 8 हो गया. सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मैक्सिमम 8, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है. सो आई कैन ड्रॉ 8 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो कैन यू सी द बिगेस्ट वन, ओके, इन द सेकेंड पीरियड इज ऑल्सो हैविंग 2 शेल्स, ओके, और 2 ऑर्बिट्स, सो दे आर इन पीरियड 2. अभी मुझे बताओ पीरियड 3 में क्या होगा, पीरियड 3 में जितने भी एलिमेंट्स है, दे ऑल विल हैव 3 शेल्स, राइट, दे ऑल विल हैव 3 शेल्स. ओके, सो हम लोग ने एल्यूमिनियम, देखो थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ड्रॉ किया है, एंड कैन यू सी देर आर 3 शेल्स. यस, देर आर 3 शेल्स. ओके, सो this number and the period number is indicating the number of shells the elements are having or number of orbits the elements are having. समझ में आ गया. तो अगर मैंने आपको पूछा रैंडमली, ओके, कोई भी एक एलिमेंट रैंडमली पूछा, तो आप बता सकते हो, आप सिर्फ उसका पीरियड नंबर चेक करके बता सकते हो कि उसमें कितने शेल्स होने वाले. इफ़ आई आस्क ओके, इफ़ आई आस्क potassium, what you will say, there are 4 shells or 4 orbits in the atom of potassium, बराबर. if I ask cobalt, okay, you will check this one, you will say cobalt को कितने shells है या कितने orbits होंगे, 4 orbits होंगे, बराबर. so potassium का क्या है एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का क्या है 20. समझ में आ गया. सो कैल्शियम के लिए कितने शेल्स होंगे, 4 शेल्स. देन यहाँ पे कितने शेल्स होंगे, ओके, रुबिडियम की कितने शेल्स होंगे, 5 शेल्स, बिकॉज इट्स पीरियड नंबर इज 5. देन ये वाला जो पीरियड है, इसमें ये सारे एलिमेंट्स के पास कितने शेल्स होंगे, 6, एंड द लास्ट पीरियड विल हैव 7 शेल्स. ओके, आर यू गेटिंग? इफ यू हैव डाउट, यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड चेक वेदर दे आर हैविंग दिस नंबर ऑफ शेल्स और नॉट. ओके, सो वापस एक बार एक ड्रॉ करते हैं, क्या कैल्शियम ड्रॉ करते हैं. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20. लेट अस ड्रॉ इट फॉर कैल्शियम. ओके, सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20. अभी 20 को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो. ओके, सो फर्स्ट इज अवर न्यूक्लियस, देन फर्स्ट शेल, देन सेकेंड शेल तो होने ही वाला है क्योंकि 20 है. ओके, बिफोर यू गो फॉर ड्रॉइंग दिस शेल्स, ओके, हम लोग क्या करेंगे पता है, क्योंकि आपको शेल्स ड्रॉ करने में कन्फ्यूजन आता है, तो पहले ना उसको लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिटन में नंबर्स लिखो, तो आपको समझ में आएगा. सो कैसे लिखते हैं, 2 बराबर, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल का भी कैपेसिटी 8 रहता है. ओके, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल इज 2, सेकेंड शेल इज 8, दैट यू ऑलरेडी नो.
बट व्हाट अबाउट थर्ड शेल? थर्ड शेल का कैपेसिटी भी 8 ही है. सो थर्ड शेल में कितने होंगे? 8. ओके, नाउ 2 + 8 इज 10, 10 + 8 इज 18. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 20. तो कितने बचे? 18 - 20 या 20 - 18 2. तो लास्ट शेल में कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो अभी मैं कितने ऑर्बिट्स या शेल्स ड्रॉ करूँगी? 1 2 3 4. सो फर्स्ट मैंने ड्रॉ किया, थर्ड वन, सॉरी सेकेंड वन, देन दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन. चलो अभी पुट द इलेक्ट्रॉन्स 1 2, देन सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8. थर्ड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8. फोर्थ शेल में कितने हैं? 2. सो 1 2. फोर्थ शेल का कैपेसिटी ज़्यादा है बट वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट. ओके, सो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. सो व्हाट इज दी what are the number of shells in the atom of calcium? 1 2 3 4. तो उसका पीरियड नंबर कितना होना चाहिए? 4 है क्या? यस, कैल्शियम का पीरियड नंबर इज 4. समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पीरियड्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अभी एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, एज यू कम डाउन, ओके, एज यू कम डाउन द पीरियड, number of shells are increasing. As you come down the shells, the periods, the number of shells are increasing. First period में 1 shell, second period में 2 shells, third period 3 shells, fourth period 4 shells, fifth 5 shells, 6 shells, 7 shells. Why? Because the electrons are increasing. Okay, so the number of shells are also increasing. समझ में आ गया? ओके, सो जैसे आप पीरियड्स में नीचे नीचे आते हो, जो हमारे एटम का साइज है वो इंक्रीज होता है. कैन यू सी? देखो, हाइड्रोजन एक ही शेल है, फर्स्ट पीरियड में है, कितना छोटा है. देन नियॉन सेकेंड में है तो हाइड्रोजन से बड़ा है उसका साइज. कैल्शियम फोर्थ में है तो उसका साइज और भी बड़ा है. सो क्या है? तो क्या समझा आपको? कंक्लूजन क्या है? एज यू कम डाउन द पीरियड, द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग बाय 1, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग बाय 1 एंड द साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस. ओके, एज यू कम डाउन, साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस और साइज ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस. समझ में आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन आता है, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि why the size of elements increases as you go down in the periods. Okay, तो ऐसा क्यों होता है? तो होपफुली आपको समझा है. ठीक है, so this is all about the periods. Okay, now next we have to see about the groups. Okay, तो ये हो गया पीरियड्स, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड. सो जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारे पीरियड्स है. कन्फ्यूजन मतलब डोंट गेट कन्फ्यूज. ओके, एंड जो वर्टिकल है वो कौन है? हमारा क्या है? ग्रुप्स है. ठीक है, सो पीरियड के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि पीरियड्स में क्या क्या होता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी अबाउट ग्रुप्स, कि ग्रुप्स में क्या क्या होता है. सो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन. ओके, सो ग्रुप में क्या क्या होता है, सो वो वाला कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम सीखेंगे. आज के लिए आप ये जितना मैंने कंसेप्ट सिखाया वो प्लीज़ लिसन टू इट अगेन एंड अगेन एंड प्लीज़ रीड वॉट एवर गिवन इन योर बुक. It is given very properly, so read this one. Okay, and read this periods and electronic configuration. ये हम लोग ने अभी सीखा. Okay, group and electronic configuration हम लोग next time सीखने वाले हैं. ठीक है, understood? Okay, please do the revision and please do ask questions.